at a various prestigious forums, including the COMSOL Conference and the International Symposium on Integrated Facilities, and has participated in a workshop on advanced topics such as machine learning for engineering applications and multi-scale continuum mechanics. At SBSU, Dr. Wahi teaches courses like engineering mechanics, AutoCAD, SolidWorks, solid mechanics, and metrology, and actively mentors students to bridge theoretical knowledge with the practical and industry relevant skills. He also engaged in a interdisciplinary research project that integrate computational modeling and experimental analysis to design efficient energy harvesting and transduction, transduction system. A recipient of the Research Scholar Travel Award (RSTA) from IIT Delhi, Dr. Wahi continues to contribute to his field of smart materials, energy harvesting, and applied mechanics, with a vision to create innovative and sustainable solutions for future engineering uh, challenges. For this, I invite Dr. Wahi sir to drive this session. Thank you. Uh, Thank you so much, sir, for introducing me. So, as Doctor introduced, so my name is Sajan Kumar Vahi. I worked in Sri Vishwakarma Skill University. So, for this session, since this session is related to MATLAB use, or we say MATLAB powered solution in mechanical for smart cities. So, this is actually the broad concept of this short term, which is actually running in NSUT. So, before I proceed, thank you so much, Dr. Simran, for inviting me and all the other associated with this short term program and NSUT as well. So, before I proceed, so the topic of my presentation will be related to energy harvesting, and it is specifically related to the ambient waste energy. So, what we actually understand from this, I'll be going you through this in the upcoming slides. So, broadly, I'll be discussing about the constitutive modeling. So that constitutive modeling part is actually we are doing it using MATLAB, and further I'll be showing you some of the FEA simulation which I actually performed during my PhD tenure. So this is what broadly I'll be going to teach you in upcoming 1 and a half a session. So this would be the outline of my presentation. So what do you mean by an energy harvester, different type of energy harvester, and further why energy harvester is actually important for the current scenario. Say smart cities are going on. So smart city concepts means there are huge number of IoT sensors which we are actually going to use while monitoring the different aspects of smart cities. Say, suppose I wanted to monitor, you can say, temperature. So for measuring the temperature at different point of the smart cities, I need a sensor, and those sensors are actually say they traditionally they will be powered using battery. So now I wanted, so after a certain time that battery will gonna discharge, and if conventionally we use electrical, say the kind of system we are having right now, say we have an electrical socket and we are giving 24-hour supply to that sensor. So that way we need a network of, say, wires and all the electrical circuits and all. So we wanted to do give a solution in such a way that I wanted to remove all those batteries as well as the conventional structure we are using, say electrical circuit and electrical wires and all. So this is what
we are actually trying to achieve using the energy harvesters. So how we are actually replacing the battery and all these structures using the energy harvester, this is what we are actually going to see in upcoming slides. Further, I will be relating you, since I'm expecting that most of the students are from BTech background. So if you are from BTech background, so probably those who are from mechanical engineering, they have done strength of material, solid mechanics part, wherein you have learned about the stress strain curve, how a material actually behave on a, if I apply a load on that material. So how it is actually going to deform. So this is something which I will be showing you in detail. Further, I'll be mixing the mechanical loading with the thermal system, which is having a thermal as well as mechanical system. So this is something I'll be showing you in upcoming slides. Further, I will be teaching you about the cytostative materials. So what are simply these materials? Say one concept is called cytostative materials, and the other concept is called energy harvester materials. So this is how I develop it using the coding and the energy harvesting device design, which I did using the COMSOL Multiphysics, one of the FEA software. So lastly, I'll be showing you the demonstration of constitutive model as well as the energy harvester model. So moving on, what do you mean by energy harvester? So I would love to say hear from you all that what do you mean by harvester? Can anyone of you from the students, if you can tell me about the harvesting? So what do you mean by harvesting? Extracting energy from environment. Okay, say we are having a farmer. So farmer usually harvest from his field, say after a certain time. So what do you mean by harvesting over there? Yes, sir. Okay, let me reiterate. से एक फार्मर होता है, लेट मी मूव टू द हिंदी. से फार्मर, ही व्हाट ही यूजुअली डू आफ्टर अ सर्टेन टाइम, वो 5 महीने में 6 महीने में एक फसल को अपने खेत से लेता है. सो दिस इज हाउ एनर्जी हार्वेस्टर इज. सो एक्चुअली वहां पे क्या हो रहा होता है कि कभी वो गेहूं को लेगा, कभी वो धान को लेगा. दैट मीन्स ही इज converting one form energy into another form. So on the similar aspects, here in energy harvest, what we are doing is we are converting the energy into two forms. Another one is hydel energy harvester. What do you mean by hydel energy harvester? If any one of you can tell me. Sir, it's similar to hydro energy harvester. So it is actually a dam. So in dam, what we usually do, we convert water energy into electrical energy. So it can be of small type, it can be of large type. So another one is solar energy harvester. So what do you mean by solar energy harvester then? We harvest solar energy into the energy we want. Yes. So we have a solar energy and we wanted to convert that into electrical energy. Or say in solar cooker, what we usually do, we convert solar energy into cooking energies, say thermal energy. So another one is mechanical energy harvester. So mechanical energy harvester is actually the energy harvester wherein we are converting the mechanical vibration available in the environment. So every, if you see everywhere you are around, so the one and another thing is actually vibrating. Say train is moving from a track, so what it is doing, it is actually vibrating the track as well as the train. If suppose I am moving on a surface, so what I am doing is I am also vibrating
because of the contact between the surface and me, I'm vibrating the contact surface. So that vibration, if somehow I can convert that into electrical energy, so wind is blowing, because of that tree and its leaves are actually vibrating. So if somehow I can convert that vibration into electrical energy, so that is the mechanical energy harvester. So broadly, energy harvesters are depending on these, say, hydel, solar, or mechanical energy harvester. So what we will be dealing in this, you can say, in this lecture, we will be mainly talking about mechanical energy harvester. So we have the ambient waste energy available in the environment, and we wanted to convert that into electrical energy. So moving on to the stress strain part first. So since I'm assuming that all of you have learned about the stress strain curve related to thermodynamics and engineering mechanics, or as well as in engineering materials. So here I have shown one of the graph we usually learn for the ductile material. So herein you can see that, uh, before I say teach you about that, so let me give you the brief idea how we actually populate this graph. So we have a UTM machine, universal testing machine, and we usually form a dog bone structure. So I have a dog bone structure, if you can see in this graph. So what we usually do is we form a dog bone structure in UTM, and in this particular specimen, we get the strain or change in the deformation within the specimen. Because of the load applied, we are getting the deformation. So because of the deformation, if I actually divide that deformation with the original length, so we will be getting the strain. And if I divide the resisting force developed within this specimen with the area of cross section, so we will be getting the stress. So this is the uh, one of the stress strain curve for the ductile material. So herein I have shown you that we have the Hooke's law, which actually tells us about the stress strain behavior. So stress is, as per the Hooke's law, stress is directly proportional to strain. And if I actually remove the proportionality, so it will give me the Young's modulus. All of you are familiar about this? So yes or no? Yes, sir. Yes. So this is all about linear relation. So up to the point A, if you can see this graph, so up to the point A, my material is going to behave like a linear material. Now, if I wanted to say model my material beyond that A point, say at B point, C point, D point, E point, then how I can do that? So this Hooke's law will only tells you about this up to this A point. Now if I wanted to model my material beyond that point, so we need more relations. So these relations are actually the non-linear relations. So that's how we usually write. So non-linear relation is equal to stress is equal to modulus of elasticity into strain raised to power n, wherein this n is actually the index or work hardening index, sometime we usually call it as. So this is one of the relation of nonlinear material behavior. So are you getting it? Are you with me? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So now this is actually related to the pure mechanical material. That means we are applying the load and we are actually getting the deformation. So for that we only required stress and strain. Now moving on to the material which is thermomechanical. So herein you can see that, what do you mean by thermomechanical? Means
we are applying the load on the specimen, as well as what we are doing is we are controlling the temperature of the specimen as well. Getting my point? So we are doing two things over here. We are applying the load. Because of that load, we are getting the strain, as well as we are applying the temperature. So uh, you can consider this as thermomechanical system. So now we are controlling two parameter. First one is temperature, another one is load. So because of that, how my stress strain behavior is actually changing. Now my stress is actually depending on two parameter, or you can say the strain is now actually depending on two parameter. First one is the load applied, and another one is temperature. So for thermomechanical system, my strain, change in deformation, or stress developed within the system is actually depending on two things. First is load, another one is temperature. Getting my point? Yes, sir. Yeah. So now, that is how I actually wrote. So now, stress developed within the system is actually the function of strain as well as temperature, or either way you can say strain developed within the system is actually the function of stress as well as temperature. So that's how thermomechanical system means we are introducing one more parameter, which is temperature. So why I'm actually teaching you, because I'll be moving towards the magnetostrictive material, wherein you will be using we will be using the two parameter for constitutive modeling. That is why I'm firstly introducing you with the thermomechanical system. That means for a constitutive behavior, we need two parameters. First one is load, another one is temperature. So moving on, say let me move to again to energy harvester. So in previous slides, what we taught is key mechanical energy harvester, wherein we are having the ambient waste energy available in the form of vibration, and we are converting that into electrical energy. So there are many type of mechanical energy harvester available, and people are using it for different applications. So first one is electrostatic, wherein we are using electrical field, and electrical field is converted into mechanical, or mechanical vibration is converted into electrical fields. So that is electrostatic. So one of the example is piezoelectric energy harvester. So आपने बहुत सारे बच्चों के शूज में देखा होगा कि शूज, छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनके शूज में लाइट जलती है जब वो अपने पैर को नीचे सरफेस पे मारते हैं. तो हैव यू सीन दैट? Yes, sir. यस. सो वहां पे क्या हो रहा है, लाइक बिकॉज ऑफ द लोड दे आर अप्लाइंग बिकॉज ऑफ देयर ऑन फुट, since that shoe is having a piezoelectric material. So what piezoelectric material is doing, it is actually converting that mechanical vibration into electrical energy. So why it is doing so? Because it is having piezoelectric material. So we will be introducing that as well. So another one is electromagnetic energy harvester. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी हार्वेस्टर मैंने यहाँ पे भी शो किया हुआ है, जिसके अंदर की on a cantilever beam we have magnet and a coil. So जब magnet move करता है ऊपर नीचे because of this cantilever motion, so that EMF is actually captured in this coil. So that's how we are converting vibration into electrical energy. So this is actually electromagnetic energy harvester. और एक और तरह का एनर्जी हार्वेस्टर होता है जिसे हम बोलते हैं मैग्नेटोस्ट्रिक्टिव एनर्जी हार्वेस्टर. What it means is कि in that kind of material is actually related to magnetic, say that material is motivated using, or I would say that material is having magnetic property within it. So because of that, when that material or our device actually vibrate,
because of that vibration, magnetic field induced in those material, and that is actually captured using the coil, similar to the electromagnetic energy harvester. So that I'll be showing you in the upcoming slides. So main motive of, or I would say main consideration or main point which I actually wanted to discuss with you in this particular talk is magnetostrictive energy harvester. So first I have introduced you with the energy harvester, then mechanical energy harvester, and in mechanical energy harvester domain I'll be teaching you in this particular section about the magnetostrictive energy harvester. So if I combine magnetostrictive energy harvester with electro or I would say piezoelectric energy harvester, so that is actually the magnetoelectric energy harvester. सो बहुत इसके टाइप्स के बारे में काफी डिस्कस हो गया. सो मैग्नेटोस्ट्रिक्टिव एनर्जी हार्वेस्टर क्या होता है, जिसके अंदर ऐसे मटेरियल जिनके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, जब उसको वाइब्रेट किया जाता है या उसके ऊपर स्ट्रेस लगाई जाती है, बिकॉज ऑफ दैट दैट मटेरियल कन्वर्टेड इनटू मैग्नेटिक सिस्टम, और वो मैग्नेट को फिर हम जब कोयल के अंदर मूव करते हैं तो बिकॉज ऑफ दैट इलेक्ट्रिकल सिग्नल इज इंड्यूस्ड इन द कोयल, जिसे हम लोग कैप्चर कर लेते हैं और फर्दर वी यूटिलाइज दैट फॉर आर ओन एप्लीकेशन जो भी होती है. सो मूविंग ऑन, से here I have shown one of the example. This is the Kurita et al study, जिसमें कि this lady is actually wearing that shoes जिसके अंदर magnetostrictive या piezoelectric devices लगा हुआ है, और because of this lady motion we are trying to see कि electrical voltage कितना induce हो रहा है. So this is one of the example. Another example is ये एक डिवाइस लगा हुआ है, और this device is actually the magnetostrictive energy harvester. So herein you can see that we have a iron gallium. This iron gallium is because iron is having a magnetic property, so this iron gallium is a magnetostrictive material, and around that we actually wrapped a coil. सो जैसे ही ये एक डोर का एक हिस्सा है और ये डोर का एक दूसरा हिस्सा है, इफ यू कैन सी माय कर्सर. सो जैसे ही दिस पार्ट ऑफ द डोर इज एक्चुअली ओपनिंग, सो ऑन दैट वॉल, जो ये वॉल है, इसके ऊपर वी हैव प्लेस्ड दिस डिवाइस and it started showing vibration, or because of that vibration magnetostrictive material converted into magnetic, and it is actually its magnetic energy is captured in the coil, and because of that electrical voltage induced in this coil. तो कुछ कुछ समझ आया कि what do you mean by magnetostrictive material? Yes, sir. या सो मैग्नेटोस्ट्रिक्टिव मटेरियल में क्या हो रहा है कि हम लोग जैसे ही वाइब्रेशन हमें मिलता है, बिकॉज ऑफ दैट मैग्नेटोस्ट्रिक्टिव मटेरियल विल बी कन्वर्टेड इनटू मैग्नेटिक, एंड वो मैग्नेट जब किसी कॉइल के अंदर मूव करेगा तो बिकॉज ऑफ दैट ईएमएफ इज इंड्यूस इन दिस कॉइल. सो दैट्स हाउ इट इज. सो वन ऑफ द मेजर एप्लीकेशन ऑफ दिस एनर्जी हार्वेस्टर इज इन बायोमेडिकल. सो अभी आजकल क्या हो रहा है, सपोज एक फैसिनेटिंग एग्जांपल है कि कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको कुछ ऐसी बीमारी है कि वो अपने दिमाग से सब काम नहीं ले पा रहे हैं. सो दैट इज एक्चुअली नोन एज पार्किंसन डिसीज. पार्किंसन डिसीज में क्या होता है कि पेशेंट अपने हाथों के ऊपर कंट्रोल खो देता है, बहुत सारी मूवमेंट्स पे कंट्रोल खो देता है. Why it is so? Because कि उनका जो दिमाग है उसके अंदर इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो पहुंचने चाहिए वो पहुंच नहीं पाते हैं. सो इट इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिकल सिग्नल, कि हाथ पर हमारे दिमाग से हाथ पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल आएगा तभी हाथ काम करेगा. सो ये सब नहीं हो पाता है, तो देयर इज वन ग्रुप विच इज एक्चुअली वर्किंग ऑन मैग्नेटो इलेक्ट्रिकल सिस्टम. तो वो एक छोटी सी चिप बना के मेम्स की वो पर्सन के ब्रेन में इम्प्लांट कर दिया जाता है, और जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल दिमाग को भेजना चाहिए वही इलेक्ट्रिकल सिग्नल वो डिवाइस भेजता है, जिससे कि उस पार्किंसन डिसीज के पेशेंट्स को थोड़ा सा रिलीफ मिलता है. लाइक दे आर नाउ
controlling their own senses. So this is one of the application. और another one application is in remote area में अगर कहीं पे हमें फॉरेस्ट के अंदर कुछ फायर सेंसर्स लगाने हैं, तो फॉर दैट ओनली अगेन वहां पे बैटरी को रिप्लेस करो, वो सब कुछ करो, एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सोर्स लेके आओ कहीं से, तो वो सब कुछ ना करके हम लोग क्या कर रहे हैं, या तो सोलर अप्लाई कर दे रहे हैं या फिर हम लोग एनर्जी हार्वेस्टर को वहां पे अप्लाई कर देते हैं, जो कि हमेशा हमारे डिवाइस को या सेंसर को लॉन्ग लास्टिंग इनफाइनाइट टाइम तक एनर्जी देता रहता है. सो दिस इज व्हाट इज एनर्जी हार्वेस्टर एप्लीकेशंस. So moving on. So since yes, this short-term course is related to smart cities. So मैंने पहले भी बताया कि smart cities का मतलब है कि we are going to use इंटरनेट ऑफ थिंग्स या फिर वायरलेस सेंसिंग नेटवर्क. मतलब कि हम हजारों लाखों करोड़ों भी बोल सकते हैं. सो वी विल बी यूजिंग बिलियंस ऑफ सेंसर इन अ स्मार्ट सिटीज. तो एक रिपोर्ट है जो कि बोलती है कि अगर स्मार्ट सिटी कॉन्सेप्ट्स को हम जिस तरीके से इंप्लीमेंट कर रहे हैं, अगर उसे इंप्लीमेंट उसी तरीके से किया जाए, तो हमें एक स्मार्ट सिटीज के अंदर अराउंड ट्रिलियंस ऑफ सेंसर्स को लगाना पड़ेगा. दैट मीन्स कि वी रिक्वायर्ड trillions of sensor in a particular smart cities to control the different parameter or to estimate the different parameter of smart cities. तो उसके लिए अगर हमें ट्रिलियंस ऑफ सेंसर लगाने हैं, दैट मीन्स ट्रिलियंस ऑफ बैटरीज लगानी होंगी, ट्रिलियंस ऑफ वायर्स लगानी होंगी, या फिर ट्रिलियंस ऑफ वायर्ड नेटवर्क लगाना होगा, जिससे कि हम लोग अपने डिवाइसेस को या सेंसर्स को एनर्जी दे पाएं, जो कि पॉसिबल नहीं है. तो व्हाट वी यूजुअली डू इज क्लस्टरिंग. सो क्लस्टरिंग में हम लोग डिफरेंट सेंसर्स को छोटे छोटे क्लस्टर्स बना के और उनके ऊपर एनर्जी सोर्सेज इन टर्म्स ऑफ एनर्जी हार्वेस्टर लगा दिए जाते हैं, जिससे कि एनर्जी हार्वेस्टर क्या करता है, लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी को बनाता रहता है बिकॉज ऑफ द एम्बिएंट वेस्ट एनर्जी. तो जो अभी हमने पिछली स्लाइड्स में देखा कि किस तरीके से एम्बिएंट वेस्ट एनर्जी को एनर्जी हार्वेस्टर कन्वर्ट कर रहा है यूजफुल एनर्जी में. So what we are doing is, instead of using power source, battery, ये सब कुछ, इसकी जगह पे we are converting that into energy harvester device. So वहां पे हम लोग 10-12 सेंसर्स के साथ में एक एनर्जी हार्वेस्टर को लगा देते हैं, जो कि लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी हमें देता रहता है. दैट मीन्स कि वी डोंट वांट एनी लाइक पावर का कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा. अनदर वन इज कि बैटरी को बार बार रिप्लेस नहीं करना पड़ेगा, रिपेयर नहीं करना पड़ेगा कुछ भी नेटवर्क एरिया को. तो दैट वे आवर लाइफ विल बी इजियर. सो दैट इज द मोटिवेशन ऑफ एनर्जी हार्वेस्टर. नाउ आर यू विद मी? सो एनी इश्यू सो फार? एनीवन? No, sir. Okay. So now moving on to the magnetostrictive materials. So अभी जैसे मैंने पिछली स्लाइड्स में थर्मोमैकेनिकल सिस्टम्स के बारे में बताया कि थर्मोमैकेनिकल सिस्टम्स क्या होते हैं, जिनके अंदर टेम्परेचर और लोड की वजह से स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है. दैट मीन्स कि स्ट्रेन प्रोड्यूस होने के दो कारण हैं, एक टेम्परेचर अप्लाई करना, दूसरा लोड अप्लाई करना. यहां पे आई एम टॉकिंग अबाउट मैग्नेटोस्ट्रिक्टिव मटेरियल. तो मैग्नेटोस्ट्रिक्टिव मटेरियल मींस मैग्नेटिक फील्ड अगर इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने से मेरा जो मटेरियल है वो डिफॉर्मेशन को शो करेगा. तो दैट इफेक्ट इज एक्चुअली नोन एज जूल इफेक्ट. ये आपने पहले भी मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में पढ़ा होगा. तो उसमें जो जूल इफेक्ट होता है वो क्या बोलता है कि वी विल बी गोइंग टू अप्लाई मैग्नेटिक फील्ड ऑन माय मटेरियल एंड बिकॉज ऑफ दैट स्ट्रेन विल बी प्रोड्यूस्ड इन माय सिस्टम. तो ऐसे ही डिफरेंट बिहेवियर शो करता है मेरा मैग्नेटिक मटेरियल जब मैं मटेरियल के ऊपर स्ट्रेस लगाता हूं. तो नाउ आई एम अप्लाइंग अ स्ट्रेस एंड बिकॉज ऑफ दैट माय मटेरियल इज गोइंग टू शो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, जिसे हम लोग बोल देते हैं मैग्नेटाइजेशन. तो इस इफेक्ट को बोला जाता है विलेरी इफेक्ट.
तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये दिस इज वन ऑफ द बार और आई एम अप्लाइंग अ मैग्नेटिक फील्ड यूजिंग दिस कॉइल. सो इनिशियली इट्स लेंथ इज L, जो कि बाद में चेंज होके हो गई L प्लस चेंज इन लेंथ. दैट मीन्स कि इसने जूल इफेक्ट शो किया. और आगे आप ये 3 डायग्राम देख रहे हो जिसके अंदर की मेरे मैग्नेटिक मटेरियल है और उसके अंदर हमने डोमेन्स शो की हुई हैं. मैग्नेटिक डोमेन के बारे में मैं अभी आने वाली स्लाइड्स के अंदर और बताऊंगा. तो जैसे ही आप लोग लोड अप्लाई कर रहे हो तो लोड अप्लाई करने की वजह से माय मटेरियल इज, मतलब इसकी जो डोमेन्स हैं पहले वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में थी, नाउ इट इज एक्चुअली मूविंग टुवर्ड्स सम अदर डायरेक्शन. तो यहाँ पे आप लोड भी अप्लाई कर रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई कर रहे हो. तो मतलब इसकी वजह से जो मेरा मटेरियल है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी शो कर रहा है और चेंज इन लेंथ भी शो कर रहा है. दैट मीन्स कि दोनों इफेक्ट हो रहे हैं, जूल इफेक्ट भी हो रहा है, वलारी इफेक्ट भी हो रहा है. तो कन्वेंशनली जैसे वन ऑफ द मैग्नेटोस्ट्रिक्टिव मटेरियल है आयरन. तो आयरन जो चेंज इन से डिफॉर्मेशन शो करता है बिकॉज ऑफ द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, जिसे हम बोलते हैं मैग्नेटोस्ट्रिक्शन. मैग्नेटोस्ट्रिक्शन का क्या मतलब है कि जब हम फील्ड अप्लाई करेंगे, फील्ड अप्लाई करने की वजह से मेरे मटेरियल के अंदर कितना चेंज आएगा, दैट इज नोन एज मैग्नेटोस्ट्रिक्शन. जो कि कन्वेंशनल सिस्टम में क्या होता था, हम उसे स्ट्रेन बोलते थे. स्ट्रेन मीन्स कि वी आर अप्लाइंग लोड और लोड की वजह से कितना स्ट्रेन आ रहा है, मतलब कितना चेंज इन डिफॉर्मेशन आ रहा है विद इन दिस सिस्टम या विद इन द मटेरियल. जो कि मैग्नेटोस्ट्रिक्टिव मटेरियल के अंदर व्हाट वी यूजुअली से कि मैग्नेटोस्ट्रिक्शन कितना हो रहा है, दैट मीन्स कि वी आर अप्लाइंग द फील्ड और बिकॉज ऑफ दैट मेरा मटेरियल के अंदर कितना डिफॉर्मेशन आ रहा है. एट द सेम टाइम वी आर अप्लाइंग द लोड एंड बिकॉज ऑफ दैट मेरे मटेरियल के अंदर कितना चेंज आ रहा है. सो दैट इज एक्चुअली मैग्नेटोस्ट्रिक्शन. गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. So moving on. So आप यहाँ पे देख सकते हो मैग्नेटोस्ट्रिक्शन है क्या एक्चुअली में. तो आप जितने भी हमारे मैग्नेटिक मटेरियल हैं, ईच मैग्नेटिक मटेरियल कंप्राइजेस ऑफ डोमेन्स. तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि डोमेन्स और कुछ नहीं होते हैं, ये छोटे छोटे टाइनी मैग्नेट्स ही होते हैं. एक ब्रॉड बल्क मैग्नेट है, उसके अंदर छोटे छोटे टाइनी मैग्नेट्स हैं. तो जैसे ही हम लोग फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये टाइनी मैग्नेट्स फील्ड की डायरेक्शन में ओरिएंट होना शुरू हो जाते हैं. फील्ड क्या है यहाँ पे? मैग्नेटिक फील्ड. सो मैग्नेटोस्ट्रिक्टिव मटेरियल के अंदर क्या होता है, when we apply magnetic field in a certain direction, these tiny magnets started orienting towards the magnetic field direction. तो इसीलिए हम लोग जो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये मटेरियल जो है अपनी डायमेंशन को चेंज कर रहा है. सो दिस चेंज इन डायमेंशन इज एक्चुअली नोन एज मैग्नेटोस्ट्रिक्शन. सो यही सब मैंने सब कुछ डिस्कस किया है कि जूल इफेक्ट क्या होता है, विलेरी इफेक्ट क्या होता है इन प्रीवियस स्लाइड. सो दिस इज समथिंग इज द रिपीटेशन. नाउ मूविंग ऑन. सो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि किसी भी अगर मैग्नेटिक मटेरियल को अगर हम माइक्रो स्केल्स पे देखें तो उसके अंदर डोमेन्स होती हैं. डोमेन्स मींस अभी मैंने बताया छोटे छोटे टाइनी मैग्नेट्स. और आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये पूरा मेरा एक, ये मेरे कर्सर को अगर आप देखें तो से ये मैग्नेट है और उस मैग्नेट के अंदर डिफरेंट डोमेन्स हैं. और इन डोमेन्स की डायरेक्शन आप देख पा रहे हैं कि ये रैंडमली ओरिएंटेड हैं इनिशियली. सो जब डोमेन इनिशियली रैंडमली ओरिएंटेड होती हैं तो उनका जो नेट मैग्नेटिक इफेक्ट होता है जिसे हम बोलते हैं मैग्नेटाइजेशन. सो वो नेट मैग्नेटाइजेशन जिसे हमने यहाँ पे m से डिनोट किया है, तो सिंस वी आर नॉट अप्लाइंग एनी मैग्नेटिक फील्ड तो उसकी वजह से ईच डोमेन इज रैंडमली ओरिएंटेड. तो अब जैसे जैसे हम एक सर्टेन डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करेंगे तो दीज स्मॉल टाइनी मैग्नेट्स विल स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. समझ रहे हो? जिसे हम रोटेशनल बिहेवियर बोलते हैं. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इनिशियली जो मेरे टाइनी मैग्नेट्स हैं विद इन दी सिस्टम वो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं और उनका
net magnetization, जो net magnetic property है, that is actually 0. Now I'm applying magnetic field in a certain direction, तो आप मेरे एरो को देख सकते हैं, और जो डोमेन्स हैं उनकी जो डोमेन आप रीजन देख सकते हैं, वो डोमेन रीजन टुवार्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता जा रहा है, और जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में नहीं है वो डोमेन धीरे धीरे करके खत्म हो जाएंगी. सो दैट्स हाउ इट इज. सो आप इनिशियली देख रहे हैं कि डोमेन रोटेशन हो रहा है, और जो डोमेन्स हैं उनकी वॉल की डिस्प्लेसमेंट भी हो रही है, और अल्टीमेटली द डोमेन विच आर टुवार्ड्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वो सस्टेन करेंगी, और मैग्नेटिक इफेक्ट भी जो है इनिशियली इट इज जीरो, स्लोली इट इज गेटिंग इम्प्रूव्ड, और एक सर्टेन मैग्नेटिक फील्ड के बाद जो मैग्नेटिक इफेक्ट है वो कांस्टेंट हो जाएगा. So that point is known as saturation, magnetic saturation. So getting my point? Yes, sir. Okay. So since you are from both mechanical and electrical, so I'm hoping कि चीजें धीरे धीरे करके आपको समझ आ रही होंगी. Yes. So moving on. So that's how it is. So अगर हम लोग स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं, अभी पहले केस के अंदर हमने क्या किया, वी आर ओनली अप्लाइंग मैग्नेटिक फील्ड इन अ सर्टेन डायरेक्शन और सीइंग कि किस तरीके से जो डोमेन्स हैं वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रही हैं. अब यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि अगर हम स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं इन अ सर्टेन डायरेक्शन, तो दिस ब्लू एरो एक्चुअली रिप्रेजेंट द स्ट्रेस अप्लाइड. सो इनिशियली हमारी डोमेन जो थी दी आर रैंडमली ओरिएंटेड, जिस कर तो टुवार्ड्स दी स्ट्रेस जो डोमेन्स हैं वो मूव होना शुरू हो जाती हैं. सो दैट्स हाउ इट इज. सो ये इसकी फिजिक्स में मैं ज्यादा नहीं जा रहा हूं. सो दैट्स हाउ मटेरियल एक्चुअली स्टार्टेड शोइंग दी मैग्नेटाइजेशन. मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करना शुरू कर देता है मटेरियल बिकॉज ऑफ दी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड. और यहाँ पे भी थर्मोमैकेनिकल सिस्टम में हमने जैसे देखा कि बिकॉज ऑफ दी स्ट्रेस अप्लाई या फिर लोड अप्लाई और साथ में टेम्परेचर अप्लाई करने से मटेरियल स्ट्रेन शो कर रहा था, वैसे ही यहाँ पे हम फील्ड अप्लाई कर रहे हैं या फिर स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं, तो उसकी वजह से जो मेरा मटेरियल है वो मैग्नेटिक बिहेवियर शो कर रहा है, जिसे हम बोलते हैं मैग्नेटाइजेशन. तो यहाँ पे भी एक्चुअली में 2 पैरामीटर्स हैं जो कपलिंग कर रहे हैं. उसको अब फर्दर और देखते हैं आगे कैसे कर रहा है, लाइक दैट. सो अगर हमें मैग्नेटोस्ट्रिक्टिव मटेरियल की कॉन्स्टिट्यूटिव मॉडलिंग करनी है, जैसे कि हमने कन्वेंशनल सिस्टम में हुक्स लॉ को डिजाइन किया था, तो हुक्स लॉ क्या करता था, बोलता था कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. सिमिलर टू दैट अगर हमें वही सेम कॉन्स्टिट्यूटिव बिहेवियर शो करना है, कॉन्स्टिट्यूटिव बिहेवियर शो करना है मैग्नेटोस्ट्रिक्टिव मटेरियल, तो व्हाट वी यूजुअली डू इज we will do it using a energy approach. तो कॉन्स्टिट्यूटिव बिहेवियर को बनाने के लिए, जिसको हम अब बाद में आपको मैटलैब कोडिंग के थ्रू करके भी दिखाएंगे, तो सेम चीज कैसे की जाती है. तो ओवरऑल माय मैग्नेटिक मटेरियल एनर्जी इज एक्चुअली डिपेंडिंग ऑन 3 तरह की एनर्जी. फर्स्ट वन इज अनाइसोट्रॉपी एनर्जी, अनदर वन इज जीमैन एनर्जी, अनदर वन इज मैग्नेटो इलास्टिक एनर्जी. तो इसके ऊपर मैं डिटेल नहीं जा रहा हूं कि ये अनाइसोट्रॉपी एनर्जी क्या होती है, जीमैन एनर्जी क्या होती है, और मैग्नेटो इलास्टिक एनर्जी क्या होती है. जस्ट आई एम गिविंग यू दी ब्रीफ. तो अनाइसोट्रॉपी का क्या मतलब होता है, कोई मुझे बताना चाहेगा, लाइक व्हाट डू यू मीन बाय अनाइसोट्रॉपी, और व्हाट डू यू मीन बाय आइसोट्रॉपी? एनीवन? Like property should be same. Yeah, so in each direction my property of the material will be same. So यहाँ पे जो मैग्नेटोस्ट्रिक्टिव मटेरियल होते हैं they are anisotropy. What do you mean by that anisotropy? That means कि each direction के अंदर मैग्नेटिक मटेरियल की जो बिहेवियर है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है. सपोज इफ आई एम अप्लाइंग मैग्नेटिक फील्ड इन say x direction, so my material will be behaving differently. अगर मैं x की बजाय y direction में मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई कर रहा हूं, then my material is behaving differently.
तो ये जो मैग्नेटोस्ट्रक्टिव मटेरियल होते हैं दे आर हाईली अनाइसोट्रॉपिक। तो इनको अगर हमें देखना है कि अनाइसोट्रॉपी किस तरीके की है, डिफरेंट डायरेक्शन में फील्ड अप्लाई करने पे ये कैसा बिहेव करेंगे, तो दैट इज एक्चुअली एनकाउंटर्ड यूज अनाइसोट्रॉपी एनर्जी। अनदर वन इज कि अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहा हूं तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो डोमेन है वो कैसे मूव करेंगी और डोमेन पे क्या इफेक्ट आएगा। तो दैट इज एक्चुअली द अप्लाइड से मैग्नेटिक फील्ड पार्ट। सो दैट इज एक्चुअली एनकाउंटर्ड यूजिंग जीमेन एनर्जी। और एक एस्पेक्ट्स मैंने आपको बताया कि बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस एप्लीकेशन जो मेरे मटेरियल की डोमेन्स हैं वो एक सर्टेन डायरेक्शन में मूव होनी शुरू होती हैं। सो दैट पार्ट इज एनकाउंटर्ड यूजिंग मैग्नेटो इलास्टिक एनर्जी। मैग्नेटो इलास्टिक एनर्जी क्या बताता है कि मैकेनिकल लोड लगाने से मैग्नेटिक बिहेवियर कैसे चेंज हो रहा है, या फिर मैग्नेटिक बिहेवियर लगाने से मैकेनिकल बिहेवियर कैसे चेंज हो रहा है। तो इस ये जो एनर्जी है दिस टोटल एनर्जी यू एक्चुअली में 3 पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है। दीज आर माय 3 वेरिएबल्स जिसे हम बोलते हैं डायरेक्शनल कोसाइन, जो कि आपने से मटेरियल साइंस के अंदर पढ़ा होगा, जिसे हम बोलते हैं LMN पैरामीटर। मिलर इंडिसेस अगर आपने पढ़ा है तो उसके अंदर LMN पैरामीटर्स के बारे में पढ़ा जाता है। तो सिमिलर टू दैट मैग्नेटोस्ट्रक्टिव मटेरियल जो है उसके अंदर डायरेक्शन, हर एक मैग्नेटिक डोमेन को की डायरेक्शन को अगर मुझे बताना है तो उसके लिए हम लोग M1, M2, M3 3 पैरामीटर डिफाइन करते हैं जो कि मेरी मैग्नेटिक डोमेन की डायरेक्शंस को बताते हैं। और डायरेक्शन कोसाइन का स्क्वायर सम ये एक्चुअली में मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है कि डायरेक्शन कोसाइंस का अगर स्क्वायर सम करें तो इट शुड बी इक्वल टू 1। so this is my constraint which is actually I am imposing on the my variable. so total energy is my function जिसके अंदर सारे पैरामीटर्स कौन कौन से मुझे कंट्रोल करने हैं, M1, M2, M3 जो कि डायरेक्शन कोसाइन है मेरे मैग्नेटिक डोमेन के। और इन मैग्नेटिक डोमेन की के ऊपर जो कंस्ट्रेन है विच इज व्हाट आई एम एक्चुअली इम्पोजिंग ऑन दोज पैरामीटर्स, वो है M1 स्क्वायर सम ऑफ all the direction cosine should be equal to 1. Getting my point? Yes, sir. Yeah. So constitutive behavior बनाते हुए total energy sum और इसके अंदर कुछ वेरिएबल्स कौन कौन से, M1, M2, M3 एंड एक कंस्ट्रेंट जो हमें इंपोज करना है ऑन दोज वेरिएबल। सो इनका यूज करते हुए व्हाट विल बी डूइंग इज वी विल बी डराइविंग द कॉन्स्टिट्यूटिव पार्ट, जिसको हम मैटलैब के अंदर करके देखेंगे कि कैसे कॉन्स्टिट्यूटिव बिहेवियर को शो किया जा रहा है। सो गिव मी अ मिनट, लेट मी फर्स्ट रन माय मैटलैब कोडिंग। सो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, देखो आर यू एबल टू सी माय मैटलैब स्क्रीन? Yes, sir. या सो इन दैट मैंने दो तरह के प्रोग्राम्स बना रखे हैं। फर्स्ट वन इज its name is RLab and another one is VPA solver. So this is actually the same study but different constitutive behavior model. So इसमें आप एक चीज देखेंगे कि जब मैं इस वाले फर्स्ट प्रोग्राम को चलाऊंगा, so that program is actually taking only 1 second or 2 second. So I'm running that. So it will be showing me the constitutive behavior of my magnetostrictive material. तो अभी आप देखेंगे कि constitutive behavior show होगा। yes, so let me run that again. So it take around 7 seconds. yeah, so it is taking hardly few seconds, says around 4 seconds. So that is showing me the constitutive behavior of my magnetostrictive material. तो मैंने जैसे पहले बताया आपको, तो थर्मोमैकेनिकल सिस्टम के अंदर क्या था, टेम्परेचर भी अप्लाई कर रहे थे
और लोड भी अप्लाई कर रहे थे, बिकॉज ऑफ दैट माई मटीरियल इज बिहेविंग। तो उससे मुझे पता चल रहा था कि स्ट्रेस कैसा आ रहा है, हीट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। तो सिमिलर टू दैट कॉन्टेक्स्ट, यहाँ पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं और स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं, और बिकॉज ऑफ दैट मेरा मटेरियल जो है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है और डिफॉर्मेशन शो कर रहा है। जो डिफॉर्मेशन है उसे हम बोलते हैं मैग्नेटोस्ट्रिक्शन लैम्डा। तो हियर इन यू कैन सी दैट कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने से, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हम यहाँ पे 0 ओएस्टेड से 400 ओएस्टेड तक चेंज कर रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि कैसे हमारा मैग्नेटिक मटेरियल जो है वो अपनी डिफॉर्मेशन शो करेगा। सो दिस फर्स्ट फिगर इज शोइंग मी कि हाउ माय मटेरियल इज शोइंग डिफॉर्मेशन बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एप्लीकेशन। और ये जो डिफरेंट लाइन आप देख रहे हैं, फर्स्ट वन इज ब्लू एंड अदर कलर्स, these all colors represent the stress application, कि different stress apply करने पे और at the same time I'm applying magnetic field, दोनों चीज हम apply कर रहे हैं। तो how my material is actually showing the deformation? So this is what we are actually seeing using this constitutive model. अनदर वन इज कि मेरा मटेरियल जो है वो मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा शो कर रहा है जब मैं उस पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहा हूं और स्ट्रेस अप्लाई कर रहा हूं। सो दिस इज समथिंग वी आर एक्चुअली सीइंग यूजिंग दी MATLAB coding. So yes, so now moving on. So अब मैंने आपको एक ये फर्स्ट प्रोग्राम चला के दिखाया। So this is the constitutive model which is developed within the R lab. So this is actually invented by us. Another code which is actually the conventional how conventionally how people are actually developing that. So जैसे मैं अभी आपको यहाँ पे दिखा रहा था कि एनर्जी मॉडल लगा के और फिर उसके बाद लोग जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूटिवली पॉपुलेट करते हैं कि हाउ मैग्नेटिक मटेरियल इज एक्चुअली बिहेविंग। सो वो कन्वेंशनल जो प्रोग्राम है या फिर आप बोल सकते हैं कन्वेंशनल अप्रोच है, उसे हमने इस प्रोग्राम में बनाया है। और जब इसको रन करते हैं तो दिस प्रोग्राम इज एक्चुअली टेकिंग अराउंड 30 मिनट्स। तो मैं इसको अभी चला के छोड़ रहा हूं, और जैसे ही हम लेक्चर एंड करेंगे आफ्टर से 30 मिनट्स, सो वी विल बी सीइंग कि किस तरीके से जो है इसके अंदर रिजल्ट आए हैं। सो एक ये सिंप्लीफिकेशन हमने की है कि ये 30 मिनट्स में जो रिजल्ट आते थे, सिमिलर रिजल्ट वी एक्चुअली गॉट इन 4-5 सेकेंड। तो अभी आपने दोनों प्रोग्राम को मैंने रन करके दिखाया। व्हाट सिंप्लीफिकेशन वी डिड ये मैं आगे धीरे धीरे करके अब आपको आने वाली स्लाइड्स के अंदर दिखाऊंगा कि हाउ वी आर एबल टू डू द 30 मिनट टास्क इन 3-4 सेकेंड। और उससे हमारे जब हम डिजाइन करते हैं मैग्नेटोस्ट्रिक्टिव मटेरियल को इन FEA सॉफ्टवेयर, तो वहां पे क्या हमें फायदा होता है। सो दिस इज समथिंग आई विल बी शोइंग यू। सो फॉर कॉन्स्टिट्यूटिव पार्ट लेट मी मूव टू दैट अगेन। तो जब भी कॉन्स्टिट्यूटिवली हमें देखना होता है कि हाउ मैग्नेटोस्ट्रिक्टिव मटेरियल इज बिहेविंग, तो उसके लिए टोटल एनर्जी कॉन्सेप्ट हमें देखना पड़ता है कि टोटल एनर्जी किस किस चीजों पे डिपेंड कर रही है। तो इसको मैंने धीरे धीरे करके आपको इलाबोरेटली बताया है कि हाउ माय मटेरियल इज एक्चुअली बिहेविंग और कौन कौन सी एनर्जी जो है वो टोटल एनर्जी में कंट्रीब्यूट कर रही हैं। सो हाउ पीपल यूजुअली डू, सो that's how actually the anisotropy energy और जीमन एनर्जी, मैग्नेटोइलास्टिक एनर्जी को इस तरीके से लिखा जाता है जिसमें कि आप ये सारे जितने भी फॉर्मूलेज यहाँ पे लिखे हुए हैं, दीज आर ऑल फिनोमिनोलॉजिकल। फिनोमिनोलॉजिकल का क्या मतलब होता है कि हिट एंड ट्रायल करके, मैथ का यूज करके पीपल यूजुअली कम्स टू दी सम कंक्लूजन कि कैसी फॉर्म होनी चाहिए फॉर अ सर्टेन एनर्जी। सो that is how it is। और जीमन एनर्जी इज एक्चुअली लाइक कि जैसे वर्क होता है तो वर्क विल बी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सो फोर्स इज वी आर अप्लाइंग and displacement what we are getting। so similar to that, जीमन एनर्जी में
on a magnetostrictive material, magnetic field we are applying and magnetization we are getting. That means magnetic behavior we are getting. So it is actually the dot product of magnetic field and magnetization. Magnetoelastic energy, in that you can see that T1, T2, T3 are the stress direction cosines. So suppose if I am applying stress in a particular direction, so स्ट्रेस के तीन कंपोनेंट होंगे T1, T2, T3 इन XYZ डायरेक्शन, और शेयर कंपोनेंट भी होंगे जिसे हमने T4, T5, T6 लिखा है। और यहां पे जो लैम्डा 100 और लैम्डा 111 है, these are the magnetostriction, that means deformation in 100 direction, deformation in 111 direction. So that's how we usually use that. So इस पे मैं ज़्यादा नहीं जाऊंगा। So total ये energies हैं जिनको हम लोग आगे use करेंगे for populating the constitutive part of the magnetostrictive material. So ये कुछ लोग जो हैं, आप बोल सकते हैं कि कन्वेंशनल स्टडीज हैं जिनको यूज करके लोग जो है कॉन्स्टिट्यूटिव पार्ट पर आगे सीखते हैं कि कैसे मैग्नेटोस्ट्रिक्टिव मटेरियल को हम लोग, आई वुड से कि कैसे कॉन्स्टिट्यूटिवली बिहेव कर रहा है मैग्नेटोस्ट्रिक्टिव मटेरियल, उसको डेवलप करने के लिए डिफरेंट स्टडीज इनिशियल फेज में धीरे धीरे करके फिर लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स दिए और बताया कि हाउ वी कैन एक्चुअली पॉपुलेट द कॉन्स्टिट्यूटिव बिहेवियर ऑफ मैग्नेटोस्ट्रिक्टिव मटेरियल। तो उसमें मैं ज्यादा डिटेल में अगेन नहीं जा रहा हूं। इसमें जो ये आप एनर्जी एवरेज मॉडल देख रहे हैं, इस पे अभी हम अगली स्लाइड्स में बात करेंगे। सो फर्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय एनर्जी एवरेज मॉडल? सो आप अभी सभी जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे जुड़े हुए हैं, हर एक स्टूडेंट राइट नाउ विल बी सिटिंग इन देयर मिनिमम एनर्जी स्टेट। कोई स्टूडेंट किसी तरीके से बैठा होगा, कोई स्टूडेंट किसी और तरीके से बैठा होगा, हो सकता है अगर ऑनलाइन चल रहा है कोई अपने रूम में है तो कोई लेटा भी हो। दैट मीन्स कि सब जो स्टूडेंट्स हैं वो डिफरेंट अप्रोच यूज करके क्यों बैठे हुए हैं, बिकॉज कि एवरीवन वांटेड टू यूटिलाइज देयर मिनिमम एनर्जी स्टेट, कि हर कोई जितने भी मटेरियल्स हैं सभी मिनिमम एनर्जी स्टेट में रहना चाहते हैं जिसमें उनकी मिनिमम से मिनिमम एनर्जी लगे। तो सेम इज विद मैग्नेटोस्ट्रिक्टिव मटेरियल। विद इन द मैग्नेटोस्ट्रिक्टिव मटेरियल वी आर हैविंग मैग्नेटिक डोमेन्स। बहुत सारे छोटे छोटे टाइनी मैग्नेट्स होते हैं और हर एक टाइनी मैग्नेट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रहना चाहता है जिसमें कि उसकी कम से कम एनर्जी लगे। तो अब हमने जो टोटल एनर्जी बनाई है U, जो कि तीन वेरिएबल्स पे डिपेंड करती है, M1, M2, M3। ये M1, M2, M3 क्या है? डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ पर्टिकुलर मैग्नेटिक डोमेन। तो हमने बताया था कि ये डायरेक्शन कोसाइंस हैं, तो स्क्वायर सम ऑफ ऑल द डायरेक्शन कोसाइन शुड बी इक्वल टू 1। तो अब ये एक एक्चुअली में कंस्ट्रेन है जिसको हमें इंपोज करना है। तो इसको इंपोज करने के लिए व्हाट वी यूजुअली डू इज कि M1, M2, M3 को स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट कर दो, और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करते ही जैसे ही हमने M1 को यूज किया एज अ साइन थीटा कॉस फाई, M2 को एज साइन थीटा साइन फाई, एंड M3 इज कॉस थीटा। सो दिस इज द स्फेरिकल कोऑर्डिनेट wherein we are representing a magnetic domain in terms of theta and phi. So ऐसे करते ही अब अगर मैं ये M1, M2, M3 के स्क्वायर सम कैलकुलेट करूं तो इट इज ऑटोमेटिकली इक्वल टू 1। जब आप इसको सॉल्व करेंगे इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा, थीटा एंड फाई, सो ये कंस्ट्रेंट अपने आप से ही इंपोज हो जाएगा। दैट मीन्स कि मेरे को अब इस कंस्ट्रेंट की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मेरे को सिर्फ मिनिमम एनर्जी देखनी है कि मिनिमम एनर्जी कहाँ है। मिनिमम एनर्जी निकालते ही आई कैन सी कि मेरी जो डोमेन्स हैं वो कैसे ओरिएंट कर रखी होंगी। तो अभी सभी ने मैथ्स पढ़ा होगा डिफरेंशियल में, तो अगर हमें किसी इक्वेशन का मिनिमा निकालना होता है तो हाउ वी कैन एक्चुअली पॉपुलेट? कोई मुझे बताएगा कि अगर सपोज आई एम हैविंग अ इक्वेशन जिसमें x और y वेरिएबल हैं और मुझे अगर
उस इक्वेशन का मिनिमा निकालना है, तो हाउ आई कैन डू दैट? So like sir, differentiation should be double differentiation of this equation should be zero. यस, सो व्हाट वी विल डू, आपने जो बताया उसमें थोड़ा सा करेक्शन है, लाइक फर्स्ट वी विल कैलकुलेट द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ विद रिस्पेक्ट टू ईच वेरिएबल, और हम उसे इक्वेट करेंगे इक्वल टू जीरो, और फिर उसके बाद व्हाट वी विल डू इज वी विल कैलकुलेट द सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, और we will see ki is it less than 0 or greater than 0. If it is less than 0, that means it will be showing me the maxima. If it is less than 0, that means greater than 0, that means it is showing me the minima. So same approach we will be using. So now जैसे ही मैंने m1 m2 m3 को इस इक्वेशन में पुट कर दिया इन टर्म्स ऑफ स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, सो दिस कंस्ट्रेंट इज एक्चुअली automatically superimposed. So now my equation in terms of जो पहले u equation थी total minimum energy function which is m1 m2 m3, now it is into theta and phi. So मेरी total equation is now converted into theta and phi, दो variable. So what we will do, we will calculate the first derivative with respect to theta, second derivative with respect to phi, और इसको equate कर देंगे equal to 0. सो यहां से हम लोग सॉल्व करेंगे थीटा और फाई को. अगेन व्हाट वी विल डू इज सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा, सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू फाई, एंड मिक्सचर ऑफ बोथ. तो इसको देखेंगे कि इफ इट इज ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब आई एम लुकिंग एट मिनिमाइजेशन, मिनिमम एनर्जी ऑफ द सिस्टम. तो हर एक डोमेन को मेरे को देखना है कि वो मिनिमम एनर्जी स्टेट में हो. मिनिमम एनर्जी स्टेट अगर हम लोग पॉपुलेट कर लेंगे तो व्हाट वी विल फाइंड कि अब जो मेरी डोमेन है वो एक सर्टेन डायरेक्शन में है, क्योंकि ईच एंड एवरी मटेरियल अराउंड अस विल ऑलवेज वांटेड टू बी इन द मिनिमम एनर्जी स्टेट. तो यहाँ पे जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट हमने लिए हैं, तो दिस थीटा विल बी इन द रेंज ऑफ 0 to पाई. स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में ऐसे ही किया जाता है. एंड फाई विल बी in the range of 0 to 2 pi. So this range I'll be defining, और उसके बाद जब मैं populate करूंगा तो I'll be able to see कि yes, my m1 m2 m3 which I calculated using this spherical coordinate, और यहां से जब मैं थीटा और फाई को निकालूंगा और उसको रिवर्स पॉपुलेट करूंगा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में, तो वहां से I'll be able to find out the m1 m2 m3. So getting my point? कैसे करेंगे? Yes sir. Yeah, so this is the non-linear constitutive model. और उसके बाद अगर हमें टोटल, लेट मी शो यू दैट, अगर मेरे पास ये m आ गया होगा which is the minimum energy state of a particular magnetic domain, तो उस छोटे छोटे टाइनी मैग्नेट्स का जब हम वेक्टर सम करेंगे टोटल, तो उससे वी विल बी एबल टू सी कि हाउ माय मटेरियल इज एक्चुअली बिहेविंग मैग्नेटिकली. सो टोटल मैग्नेटाइजेशन कितना आ रहा होगा, दैट वी विल यूजुअली सी यूजिंग दिस. तो इस पे मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं. तो सिमिलर अप्रोच, सिमिलर कॉन्सेप्ट वी एक्चुअली डिड इन दिस. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें अगर मैं इस प्रोग्रामिंग पे जाऊं, तो यहाँ पे हमने देखो, यहाँ पे m1 m2 m3, दीज आर दी स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स वी डिफाइन, और थीटा और फाई जो अभी हमने स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में बताए, ये हमने डिफाइन किए हैं, और दीज m1 m2 m3 आर दी डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ पर्टिकुलर मैग्नेटिक मूवमेंट. और फिर आप अगर फर्दर जाएं तो जो मैंने आपको फिनोमेनोलॉजिकल फॉर्मूलेज दिखाए हैं फॉर अनिसोट्रोपिक एनर्जी, जीमेन एनर्जी एंड द मैग्नेटोइलास्टिक एनर्जी, तो यही वो फॉर्मूलेज हमने लिखे हुए हैं. और यहां पे हम लोग वेक्टर सम कर रहे हैं ऑफ ऑल दीज एनर्जी. सो फर्स्ट यहां पे जैसे मैंने आपको अभी बताया कि हमें मिनिमाइजेशन करने के लिए डेरिवेटिव लेने होते हैं. तो यहां पे आप देख रहे हैं इस टोटल एनर्जी का हमने डेरिवेटिव लिया है विद रिस्पेक्ट टू थीटा. सो आई होप कि इन इनिशियल फ्यू लेक्चर्स आपने मैटलैब के
डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन फॉर्मूलेज थोड़े बहुत लर्न कर लिए होंगे एंड देयर एप्लीकेशंस। तो यहाँ पे हम लोग वही एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे what we are doing is एनर्जी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा। अनदर वन व्हाट वी आर डूइंग इज एनर्जी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू फाई। तो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है कि व्हाट वी विल डू कि we will first calculate the first derivative with respect to theta and another derivative with respect to phi, and we will be equating that equation into 0. So this is something I'm doing over here. So first derivative with respect to theta, first derivative with respect to phi, and I'm equating these two equation equal to 0. So this is my equation 1, this is my equation 2. And herein you can see that I'm populating the second derivative with respect to theta, second derivative of energy with respect to phi, and second derivative with respect to theta and phi. So that's how I am calculating it using the MATLAB. So now I am having two equations. कौन कौन सी? equation 1 and equation 2. ये equations क्या हैं? These equations. First equation which is derivative with respect to theta equal to 0, derivative with respect to phi equal to 0. Now I have to solve these two equations using the MATLAB. And another thing, I have to impose a constraint कि जब उसका second derivative लें तो second derivative should be greater than 0. अगर वो सेकेंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होगा तब ही मेरी जो एनर्जी निकल रही है दैट इज इक्वल टू मिनिमाइजेशन, है ना। मिनिमाइजेशन के अंदर द सेकेंड डेरिवेटिव शुड बी ग्रेटर देन 0. सो दिस इज समथिंग आई एम सुपर इम्पोजिंग। तो ये मैंने यहाँ पे सेकेंड डेरिवेटिव लिए हैं और अब मैं यहाँ पे रेंज डिफाइन कर रहा हूं कि अल्टीमेटली नाउ माय इक्वेशन इज टोटल एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ थीटा एंड फाई। तो यहाँ पे ये जो टोटल एनर्जी है जैसे ही हमने इसको थीटा और फाई में कन्वर्ट किया तो नाउ आई हैव टू पॉपुलेट माय इक्वेशन और मेरे वेरिएबल जो होंगे वो थीटा और फाई होंगे। और थीटा और फाई कितनी रेंज तक वेरी करते हैं इन टर्म्स ऑफ स्फेरिकल कोऑर्डिनेट वो मैंने आपको यहाँ पे बताया है। तो दिस इज समथिंग आई एम एक्सप्लेनिंग ओवर हियर कि रेंज थीटा की कहां से कहां तक होनी चाहिए, फाई की कहां से कहां तक होनी चाहिए। अब ये जो इक्वेशंस बन के आ रही हैं दीज इक्वेशंस आर हाईली नॉन लीनियर, जिसके अंदर थीटा और फाई के जो पैरामीटर्स हैं कोस थीटा की पावर कैन बी ऑफ थर्ड, कोस थीटा साइन थीटा की पावर कैन बी ऑफ फोर्थ। सो इतने कॉम्प्लिकेटेड सॉल्यूशन को सॉल्व करना विल बी वेरी डिफिकल्ट टास्क। सो for that MATLAB is having VPA solver. So I'm using this VPA solver for solving these equations which I already defined over above, and I have defined the variable as well as range. और ये सब कुछ डिफाइन करने के बाद जो MATLAB है वो ऑटोमेटिकली सॉल्व कर देता है, सॉल्यूशन दे देता है। और these solutions are since I'm getting the two solution, so which is actually stored in temp variable, or temp का first variable is theta and second variable is phi. So this is something I'm populating, so it will give me the solution, and ultimately I'm checking कि my second derivative should be greater than 0. So this is something I'm doing over here. So I'm checking the if whatever the solution I'm getting above it should be greater than 0. So ऐसा हो सकता है ना कि जो ऊपर सॉल्यूशन आएंगे वो जीरो भी हो सकते हैं, लेस देन जीरो भी हो सकते हैं, ग्रेटर देन जीरो भी हो सकते हैं, बट व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर ओनली लुकिंग एट मिनिमा माय डोमेन, क्योंकि हमें ये देखना है कि जो हमारी डोमेन है वो मिनिमम एनर्जी स्टेट में हो। तो दिस इज समथिंग व्हाट वी आर सीइंग ओवर हियर, एंड अल्टीमेटली जो सॉल्यूशन अब हमें ऊपर से मिलेगा दिस इज समथिंग आई एम राइट नाउ आई एम हैविंग थीटा एंड फाई जो कि मिनिमम एनर्जी स्टेट में है। अगेन आई एम सुपर इम्पोजिंग दैट इनटू स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स जो कि हमने यहाँ पे डिफाइन किए हैं। तो वंस आई हैव थीटा एंड फाई जो कि मिनिमम एनर्जी स्टेट्स के हैं उससे हम लोग रिवर्स पॉपुलेट करके वी कैन कैलकुलेट दी m1 m2 m3. so these are the direction cosines of my magnet, so that's how we can calculate. और फिर उसके बाद what we usually do is
कि वी फाइंड आउट दी वंस वी हैव द इंफॉर्मेशन ऑफ अ सिंगल मैग्नेटिक डोमेन, तो फिर उसके बाद हमें ये देखना होता है कि विद इन दी मैग्नेट कितनी सारी डोमेन्स हैं। से हर एक डोमेन के अंदर, हर एक मैग्नेट के अंदर हजारों डोमेन्स होती हैं। तो उन सारी डोमेन्स को वेक्टर सम करके वी विल बी कैलकुलेटिंग दी नेट मैग्नेटिक इफेक्ट, again net magnetostriction effect. So these are some of the variables which I am calculating. So यहाँ पे ये m जो है, this is the net magnetic effect, E is the net magnetostriction effect. जब इन सबको हम सॉल्व करते हैं तो ultimately we will be able to see the constitutive behavior. So are you with me? Yes, sir. So कोई ब्रीफ करना चाहेगा अभी तक हमने जो भी डिस्कस किया है? Anyone? Anyone from the students? So, firstly, we have to construct the equation for the total Total energy, energy, yeah. right? And after that, we have to find the minimum or maximum. So the Yes. total energy, we have to differentiate in the Hmm. first Hmm. partial differentiation with the first time and equating to Hmm. zero. And Hmm. after there, we have to find phi or theta. Hmm. And once we get the phi and theta, then we have to put this phi and theta in the second derivative. Hmm. If second derivative will be getting might be greater than zero or equal to zero, or less than zero, Hmm. right? So once I get less than zero, that means it would be the maximum. Once I Hmm. get the greater than zero, then it would be a minimum, right? Yes, it will be So greater than zero, so it will be minimum. So and once we are able to calculate the theta and phi, we will be Mhm, superimposing back into mhm, m1, m2, m3, और mhm. फिर उससे हम लोग एक डोमेन के बारे में जान लेंगे, और फर्दर we will be doing the vector sum of all the domains, and we will be calculating the magnetization of complete magnet, Yes. magnetostriction of the complete magnet. So this is something we are doing. So अभी मैंने जो आपको बताया कि नॉन लीनियर मॉडल है जो मैंने अभी तक रन किया हुआ है, जिसके रिजल्ट्स नहीं आए हैं, वो Mhm. यही मॉडल है। अब हमने ऐसा क्या किया कि सेम रिजल्ट्स जो हैं वो 3 से 4 सेकंड के अंदर हमें मिल रहे हैं। सो दिस इज समथिंग वी डिड से, दिस इज नोन एज लोकली लीनियराइज एनर्जी मॉडल। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि अभी आपको इनिशियली अगर यहां दिखाएं कि वी हैव टोटल एनर्जी एंड वी वांटेड टू सुपर इम्पोज दी कंस्ट्रेन। जो कंस्ट्रेन क्या है कि m1, m2, m3 vector sum should be square vector sum should be equal to 1. So this is something we wanted to do. So on a particular equation we wanted to impose this constraint. So अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है यूजिंग अ लाग्रांजे मल्टीप्लायर। सो मैथमेटिक्स में देयर इज अ टर्म जिसे हम बोलते हैं लाग्रांजे मल्टीप्लायर। व्हाट इट यूजुअली डू, इट से दिस, ये टोटल एनर्जी सम जिसके ऊपर हमें ये कंस्ट्रेंट इंपोज करना था। तो व्हाट लाग्रांजे मल्टीप्लायर यूजुअली डू, जिसे हम लिखते हैं एल से, ये क्या कहता है कि हम जिस इक्वेशन के ऊपर हमें कंस्ट्रेंट को इंपोज करना है उनके साथ में उस कंस्ट्रेंट को लिख दें और साथ में एक लाग्रांजे मल्टीप्लायर डिफाइन कर दें। तो इससे क्या होता है कि हमारी एक लाग्रांज टोटल एल इक्वेशन बन के आ जाती है, और वो कहता है कि लाग्रांजे मल्टीप्लायर विल बी माय अगेन एन अनदर वेरिएबल। सो मैंने यहां पे जो लाग्रांज फंक्शन डिफाइन किया है, दिस इज अ टोटल फंक्शन जिसके अंदर टोटल एनर्जी U है और साथ में लाग्रांज मल्टीप्लायर म्यू है। और ये जो कंस्ट्रेंट हमें इंपोज करना था m1, m2, m3, which is what we are multiplying with the Lagrange multiplier. So अब जो हमारी इक्वेशन है, इंस्टेड ऑफ 3 वेरिएबल इक्वेशन जो कि पहले थी, वो इक्वेशन क्या थी, m1, m2, m3, और नॉन लीनियर टर्म में हमने उसको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट कर दिया था, जिससे कि वो कन्वर्ट हो गई थी थीटा और फाई में। लेकिन यहां पे हम लोकली लीनियराइज एनर्जी मॉडल में क्या कर रहे हैं, लाग्रांजे मल्टीप्लायर इंट्रोड्यूस करके एक नया फंक्शन बना रहे हैं जिसे हम बोल रहे हैं लाग्रांज फंक्शन। और अब वी आर ट्राइंग टू सॉल्व
the same equation or same effect with the help of energy minimization. वही फर्स्ट वेरिएबल डेरिवेटिव निकालेंगे, सेकंड वेरिएबल डेरिवेटिव निकालेंगे, लेकिन उससे पहले what we are doing is कि we are defining a k variable, or we are doing the total energy टेलर सीरीज एक्सपेंशन अबाउट सी के. तो ये क्या है, ये मैं बताता हूं पहले. मैंने अभी आपको बताया कि ईच मटेरियल वांटेड टू बी इन द मिनिमम एनर्जी स्टेट. दैट मींस कि जितनी भी डोमेन्स मेरे मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर होंगी, दे ऑल वांटेड टू बी इन द मिनिमम एनर्जी स्टेट. तो मैं उससे 1000 मैग्नेटिक डोमेन्स हैं जो विद इन द मैग्नेटिक मटेरियल, और वो सभी उनकी हमें डायरेक्शंस पता हैं. तो वो डायरेक्शंस मैंने यहाँ पे सी के से रिप्रेजेंट कर रखी हैं, जिसे हम बोलते हैं इजी एक्सेस. सो इन टर्म्स ऑफ गैल्फेनॉल मटेरियल, अगर हम उसकी फिजिक्स को थोड़ा बैकग्राउंड में पढ़ें, तो व्हाट वी रियलाइज कि मैग्नेटिक गैल्फेनॉल मैग्नेटोस्ट्रिक्टिव मटेरियल इज हैविंग मैग्नेटिक डोमेन इन ओनली इन द डायरेक्शन ऑफ 100. तो 100 में जितने भी डिफरेंट आप बोल सकते हो केसेस बन सकते हैं, लाइक 100, 010, 001. These are the three cases. Or another one is -10, 0, -10, 00, -1. So these are the 6 cases for a 100 direction. So galphenol में these 6 domains are actually the domains which are actually present within the galphenol. तो हम क्या कर रहे हैं, हम इन डोमेन्स के अबाउट अपनी टोटल एनर्जी की टेलर सीरीज एक्सपेंशन कर रहे हैं, और टेलर सीरीज एक्सपेंशन करके अप टू द सेकंड ऑर्डर टर्म वी आर प्लेसिंग दैट टोटल यू इनटू दैट. और सिमिलरली जो कंस्ट्रेंट हमें इंपोज करना है, that constraint is m1 square plus m2 square plus m3 square minus 1. This constraint we have to superimpose on my total energy. तो उसको भी मैं टेलर सीरीज एक्सपेंशन कर रहा हूं अप टू दी फर्स्ट ऑर्डर टर्म. अब ये फर्स्ट ऑर्डर टर्म तक क्यों कर रहे हैं, यू को सेकंड ऑर्डर टर्म तक क्यों कर रहे हैं, ये भी आपको समझ आ जाएगा. सो इन नेक्स्ट स्लाइड, नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज कि जो सुपर इम्पोज करके हमने टेलर सीरीज एक्सपेंशन करके अपने कंस्ट्रेंट को निकाला था, उस कंस्ट्रेंट को हम इक्वल टू से कंस्ट्रेंट को टेलर सीरीज एक्सपेंशन करके जो हमने निकाला है, सो इट इज एक्चुअली कमिंग आउट टू बी दिस. सो नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज कि हमने अपने टोटल लग्रांज फंक्शन को 6 मैग्नेटिक डोमेन्स के अबाउट टेलर सीरीज एक्सपेंशन कर दिया है, and now I am doing the minimization. So I'm calculating the first order differentiation, और ये first order differentiation क्या है with respect to m1, m2, m3, since my total Lagrange function is the function of m1, m2, m3. और फिर इसको जब थोड़ा सा हम लोग मैथमेटिकली इधर उधर इक्वेशंस को लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड करके थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके निकालते हैं, सो वी विल बी एबल टू फाइंड आउट दी m फॉर्मूला डायरेक्टली. सो इससे जो m फॉर्मूला जो निकल के आया है, उससे वी विल बी एबल टू कैलकुलेट की जो हमारी मैग्नेटिक डोमेन है उनकी मिनिमम एनर्जी स्टेट क्या निकल के आ रही है, और फिर हम टोटल वेक्टर सम करके नेट इफेक्ट ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल निकाल लेते हैं. सो दिस इज द सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ अर्लियर मॉडल, जो कि नॉन लीनियर मॉडल था, और ये लोकली लीनियराइज मॉडल है, और इसकी भी हमने मैटलैब कोडिंग की. तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एक मटेरियल के लिए हमारे पास रिजल्ट आ गया है यूजिंग दी नॉन लीनियर कॉन्स्टिट्यूटिव बिहेवियर. सो ये सिर्फ एक स्ट्रेस के लिए आया है. 30 आई गेस अराउंड 30 मिनट्स हो चुके हैं. 1235 डिवाइड बाय 60, सो दिस इज अराउंड 20 मिनट. सो अराउंड 20 मिनट से हमारा ये जो है कोड चल रहा था फॉर नॉन लीनियर कॉन्स्टिट्यूटिव बिहेवियर, जिसने सेम रिजल्ट दिए हैं फॉर ओनली अ सिंगल स्ट्रेस. अगर मेरे को 6 स्ट्रेसेस या 5 स्ट्रेसेस के लिए निकालना है, सो इट विल बी गिविंग मी द रिजल्ट इन 100 मिनट अराउंड, जो कि सेम रिजल्ट जो 100 मिनट के
हम लोग नॉन लीनियर कॉन्स्टिट्यूटिव बिहेवियर से निकाल पा रहे हैं, सेम रिजल्ट हम इस वाले सिंप्लीफाइड वर्जन जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया उससे हम लोग 4-5 सेकंड के अंदर ही निकाल पा रहे हैं. तो मैं आई एम अगेन पॉपुलेटिंग दैट. सो गिव मी अ 4-5 सेकंड. So you can see over here कि that same constitutive behavior of my magnetostrictive material I'm populating using this simplified version of constitutive behavior. उससे हम लोग 4 सेकंड में ही same constitutive behavior को निकाल पा रहे हैं. So this is one of the demonstration of constitutive behavior for magnetostrictive material. अब इसका आगे करना क्या है? Within the 10 minutes I'll be showing that कि इससे हम करते क्या हैं. तो वंस वी हैव द कॉन्स्टिट्यूटिव बिहेवियर कि हमारा मटेरियल जो है वो कैसा बिहेव कर रहा है यूजिंग द मैग्नेटिक फील्ड और यूजिंग द स्ट्रेस, हमारा मटेरियल कैसा मैग्नेटाइजेशन शो करेगा, मैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा, या फिर हाउ इट्स स्ट्रेस की इट इज एक्चुअली शोइंग मी द स्ट्रेन्स और मैग्नेटोस्ट्रिक्शन. गिव मी अ मिनट. So yes, so now what we are doing is we are doing the actual device design. So once we have the constitutive behavior experience कि हम एक पर्टिकुलर फील्ड लगाने पे या एक पर्टिकुलर स्ट्रेन लगाने पे जो हमारा मटेरियल है वो किस तरीके से बिहेव करेगा, सो दैट कॉन्स्टिट्यूटिव बिहेवियर वी आर यूजिंग फॉर डिजाइनिंग द डिफरेंट मटेरियल. तो इसमें आप देख सकते हैं आई हैव शोन यू द एग्जांपल ऑफ 1D रोड ट्रांसड्यूसर, जिसमें कि हम लोग देख रहे हैं कि ये गैल्फेनॉल रोड, गैल्फेनॉल इज एक्चुअली अ मैग्नेटोस्ट्रक्टिव मटेरियल, कि इसके ऊपर जब हम कोयल के अंदर करंट को दौड़ाएंगे, वी विल बी यूजिंग द करंट इन द कोयल. So because of that, how my magnetostrictive material is actually going to change, how the magnetic behavior is going to change, how it is actually showing me the strains. So this is something we are populated using finite element software. So this is one of the example of the application, actual application of device design. Another one is the energy harvester device design. So herein you can see that I have shown you the one of the cantilever beam based rectangular energy harvester. तो इसमें आप देख सकते हैं कि I am having a structural steel और जिसके अंदर साथ में हमने मैग्नेट लगाए हुए हैं, प्रूफ मास लगाया हुआ है, एंड आई एम हैविंग अ गैल्फेनॉल मटेरियल व्हिच इज एक्चुअली अ मैग्नेटोस्ट्रिक्टिव मटेरियल. और मैग्नेटोस्ट्रिक्टिव मटेरियल की मैग्नेटिक बिहेवियर को कैप्चर करने के लिए वी हैव अराउंड कोयल, जिससे कि हम लोग वोल्टेज को कैप्चर कर लेंगे. सो वंस दिस weight is actually this weight is actually hanged using a thread. So once this weight is actually cut, thread is cut using this scissor, so this cantilever beam started vibrating, and because of that my magnetostrictive material started behaving like a magnet, and this behavior is actually captured within the coil, and we are able to calculate the voltage. So we will be able to say capture the voltage. So this is one of the example of the rectangular energy harvester. और सेम जो कॉन्स्टिट्यूटिव बिहेवियर मॉडल हमने डेवलप किया है, इस मॉडल का यूज करके हम लोग इस डिवाइस को डिजाइन करते हैं. तो दैट आई विल बी शोइंग यू इन द फाइनाइट एलिमेंट सॉफ्टवेयर. सो इज देयर एनी डाउट अंटिल नाउ? तो यू कैन टेल मी. डॉक्टर वाही, मेरा एक क्वेश्चन है छोटा सा. या एक्चुअली आप जैसे मैटलैब में जो डिफरेंट डोमेन से टोटल मैग्नेटिक इफेक्ट कैलकुलेट करते हैं वो प्रैक्टिकल वैल्यू से मैच कर जाता है? क्योंकि मटेरियल्स में भी कुछ नॉन लिनियरिटी होगी. जो आप assumptions लिए हैं मटेरियल से रिलेटेड, उतना एक्चुअल मटेरियल में वो चीजें नहीं मिलेंगी. यस सर. तो ये जो हमारे कॉन्स्टिट्यूटिव बिहेवियर हैं, ये जो हमने डेवलप करे हैं, दिस इज एक्चुअली बिकॉज ऑफ डेवलप्ड यूजिंग एनर्जी एवरेज मॉडल. सो हमने व्हाट वी सी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कि जैसे मैंने एक जगह पे लिटरेचर रिव्यू में शो किया था कि देयर आर डिफरेंट मॉडल्स. जैसे लीनियर पीजो मैग्नेटिक मॉडल जो है वो एक्चुअली में कैप्चर कर पाता है मटेरियल का एक्चुअल बिहेवियर अप टिल
लो फील्ड, बहुत थोड़ी फील्ड अगर अप्लाई करेंगे तो ये कॉन्स्टिट्यूटिव बिहेवियर विल बी एबल टू कैप्चर दैट. सो फर्दर अगर हम प्योरली मैग्नेटिक सिस्टम को देख रहे हैं तो उसके लिए कुछ और मॉडल बनाए गए हैं. लेकिन अगर प्योर मैग्नेटो मैकेनिकल और हाई फील्ड अगर हम किसी सिस्टम में अप्लाई कर रहे हैं, तो व्हाट वी आर एबल टू सी कि ये जाइल्स एंड थोल्के मॉडल और आर्मस्ट्रॉन्ग मॉडल जो है वो एक्चुअली बहुत अच्छा प्रिडिक्ट कर पाता है. वेरिन जो जाइल थोल्के मॉडल है वो प्योरली फिनोमेनोलॉजिकल है, जबकि जो ये जो हम अभी मैंने आपको एक मॉडल शो किया लीनियर डीईए मॉडल, डिस्क्रीट एनर्जी एवरेज मॉडल, ये इसमें मॉडल डॉक्टर भाई जो मॉडल आप बता रहे हैं जाइल्स एंड थोल्के एंड आर्मस्ट्रॉन्ग, दीज आर मतलब फ्रीली मतलब अवेलेबल इन दी internet? Yes, these are in the open domain. Okay, So this minimum energy approach, what I have shown over here, nonlinear constitutive model, so this is actually the Armstrong model. okay. Yeah, so this Armstrong model actually predict the result. और यहाँ पे मैंने आपको ये एक्चुअली में दिखाया भी हुआ है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो सॉलिड लाइंस हैं, these solid lines are actually the experimental results calculated using non-linear model. और जो यहाँ पे आप these dots are actually the experimental results calculated using the non-linear constitutive model. Wherein जो आप यहाँ पे solid lines देख रहे हैं, these are the results which we populated using the locally linearized model. और नॉन लीनियर मॉडल जो है वो अराउंड 37 मिनट्स लगा रहा है फॉर अ सिंगल स्ट्रेस लाइन, wherein जो locally linearized model है वो completely within a fraction of second we will be able to populate the results. और ये experimentally validate किए गए हैं. जो हमने non-linear model results उठाए हैं, these results are actually the experimentally validated results. So these models are actually predicting very good. अच्छा, एक चीज harvester devices होती हैं, Yes. they are also used for commercial power productions or they are only for small devices? No. That so say इंटरनेट ऑफ थिंग्स आजकल बहुत बज वर्ड यूज हो रहा है. और अभी आप देखेंगे आई एम एक्चुअली गोइंग थ्रू वन ऑफ द लिटरेचर रिव्यू. तो जैसे बहुत सारी ऐसी आर्कोलॉजिकल साइट्स हैं जहाँ पे बहुत दूर दराज हैं, अपने शहर से बहुत दूर हैं, वहाँ पे कोई इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स नहीं है, कोई सोलर अप्रोच नहीं है. सो फॉर मॉनिटरिंग डिफरेंट different domains like temperature, humidity, different parameters of that particular zone. So इसके लिए एनर्जी हार्वेस्टर को यूटिलाइज किया जा रहा है. सो देयर इज अ रिपोर्ट कि बिलियंस ऑफ सेंसर्स की रिक्वायरमेंट होगी फॉर स्मार्ट सिटीज, एंड फॉर दैट we have to idealize this approach, and we have to come up with the solutions using these devices. If I'm not wrong, Professor Sushma Santapuri in Applied Mechanics Department. Yes, she is my professor. Okay. I worked under her. So she also, I mean, apart from computational modeling, she also has developed a physical device also. Yes. So this is what I am showing you. So give me a minute. So herein this is the experiments part we have done. So herein you can see that within that we have structural steel, and we have galphenol, and we have flux path. So we have actually made a device which is using a flux path, and we compared the device performance having flux path with the device which is not having the flux path. And what we see is that we are getting the around 100% increase in the voltage output because of only using the flux path. तो ये जो एनर्जी हार्वेस्टर डिवाइसेस हैं, इससे मैक्सिमम कितनी वोल्टेज हम प्रोड्यूस कर सकते हैं? Yes, so on the device only. Yeah, so मतलब हम लोग जो अपने टाइम पे पॉपुलेट कर पाए थे रिजल्ट्स, so that is around 3 volt to around say 4-5 volts. So इतना ही मैक्सिमम कर पाए थे, और उसमें भी आप मैक्सिमम, ये मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अदरवाइज mostly their results will always be in millivolt.
तो हम लोग मिली वोल्ट तक ही कैप्चर कर पाते हैं मैक्सिमम अभी फिलहाल. और फॉर अ स्पेसिफिक सेंसर the voltage requirement is actually around 10 millivolt, 20 millivolt, 30 millivolts. So Okay. that we usually matlab we are able to like easily able to use that. Okay. And one thing I have noticed is that most of the एक IIT इंदौर में भी प्रोफेसर हैं. I am Yeah. not able to recall his name. Huh. I have seen most of them when they go for FE modeling, they go for COMSOL. So any Yeah. specific मतलब advantage or USP of COMSOL in modeling this energy harvester device? Actually, sir, issue ये है कि magnetostrictive material specifically related to magnetostrictive material. So for modeling magnetic behavior, we or specifically related to the non-linear magnetic behavior. So ANSYS is not able to capture that. So इसके लिए हमें जैसे constitutive behavior बाहर से डालना पड़ रहा है. So जैसे मैं अभी यहाँ पे एक FE मॉडल मैंने बनाया हुआ है, तो इसमें I can show you कि एक बार हमने FE मॉडल बना लिया तो उसके बाद MATLAB इसमें एक फंक्शन होता है लाइव लिंक विद MATLAB. तो उससे हम लोग डायरेक्टली लाइव लिंक का यूज करके MATLAB को इंटीग्रेट कर लेते हैं इसके साथ. और फिर वी आर एबल टू मतलब अगर बहुत ज्यादा फील्ड चेंज हो रही है, नॉन लिनियरिटी बहुत ज्यादा है, तो ऐसे केसेस में इसको सॉल्व करना इन ANSYS इज एक्चुअली गेटिंग डिफिकल्ट. उसमें लीनियर पार्ट तक इट इज ओके, बट फॉर the kind of advantage this COMSOL is actually giving me, that is why I'm actually using that. Okay, तो ये MATLAB के साथ इंटीग्रेशन है. This is the USP. Yes. Okay. एक तो ये, और साथ में अब नॉन लीनियर बिहेवियर्स और 3D, अगर आपको 3D पार्ट्स को डिजाइन करना है, so that is like for multi-physics problems. So आप यहाँ पे देख सकते हैं I'm using 4 multi-physics simultaneously. So I'm using solid mechanics for considering the solid part, and for magnetic part I'm using the magnetic field physics. Another one is the electrical circuit, because that way I'll be using the coil and the resistor. So that physics is encountered using electrical circuit. And third physics I'm using to integrate my constitutive behavior with the say model. So these 4 physics simultaneously I'm using. So this multi-physics problem is like in COMSOL it is easier to do. अदरवाइज बहुत टेंशन, मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है सर इसको साइमल्टेनियसली हैंडल करना, इतनी सारी फिजिक्स को. और फिर यही है लाइक मोस्टली डिजाइन करना और सब करना, इट विल बी एक्चुअली डिफिकल्ट. Okay, thank you. Thank you, sir. Any other question from the audience? Okay, so let me, anyone? Yes, myself, Dr. Anjani. Namaskar, sir. Namaskar, sir. So, sir, can we directly use these voltages for any applications like that, or we need yes, to process? so अभी जो यहाँ से वोल्टेज आउटपुट आ रहा है, तो इलेक्ट्रिकल सर्किट डिजाइन करना इज अगेन एन अनदर एस्पेक्ट ऑफ अ रिसर्च. सो व्हाट पीपल यूजुअली डू इज कि जो कोयल से आउटपुट आ रहा है फिर उसको मैक्सिमाइज कैसे करना है, तो उसके लिए सर्किटरी डिजाइन, तो ब्रेड बोर्ड पे वो सब कुछ लोग पीपल यूजुअली डू. सो जो इलेक्ट्रिकल सर्किट मैंने अभी आपको कॉमसोल में दिखाया, तो उसमें लोग थोड़ा सा पॉपुलेट करते हैं कि रजिस्टर लगाओ, कैपेसिटर लगाओ या फिर इंडक्टर लगाओ, और फिर उससे लोग पीपल यूजुअली सी कि हाउ वी आर गेटिंग द वोल्टेज आउटपुट, और फिर उसको पीपल यूजुअली डायरेक्टली यूज इन देयर स्टडीज. Okay. So we need a proper arrangement to harness this type of voltage. Yeah. Okay. So once मेरा काम था कि वोल्टेज आउटपुट यहाँ तक बढ़े, लाइक डायरेक्टली कोयल में जो वोल्टेज आउटपुट आ रहा है दैट हैज टू बी इंक्रीज्ड. सो उसके लिए डिजाइन पार्ट आई एम सीइंग कि लाइक फ्लक्स पाथ लगाएं तो क्या होगा, फ्लक्स पाथ ना होगा. बट अगर अब आगे अगर किसी को इसको और यूज करना है, सो फॉर दैट दे हैव टू डिजाइन दी सर्किटरी एंड लुक एट दैट कि और इस वोल्टेज को कैसे मैक्सिमाइज किया जा सकता है. और फिर that way they can easily able to use that device. Yeah, like that we want to assemble with the solar cells, that we just generate the voltages in the solar cell
and can Huh. get directly DC supply from that one Yeah, by yeah, connecting yeah. into sewage or parallel. But I think it could be not possible in such cases. No? We need Yes. some Some process. circuitries. Yeah. Yes. Okay. Fine. Sir. Yeah. Okay. Thank you, sir. Yeah. So let me show you one of the video which I actually captured during my PhD. So इसमें हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास डिवाइस है और साथ में मैंने एक मोबाइल के ऊपर एक फैंसी सा गाना लगाया हुआ है, एंड बिकॉज ऑफ दैट acoustic signal I'm trying to capture the voltage output using my device. So here you can see that, और गाना भी थोड़ा पंजाबी है like that. So here is my device, and I just placed this mobile, and one song is ringing on that, and because of that song I'm able to see the voltage output. So this device is that much sensitive. So we proposed मतलब जब हमने पेटेंट फाइल किया तो उसके अंदर what we proposed कि because of this device we are able to calculate capture the acoustic signal. So further अगर कोई और acoustic के ऊपर काम करना चाहता है, so this can be one of the studies which can be done using this. So that's all from my side, I guess. अगर और कुछ डिटेल्ड इसके बारे में और डिस्कशन करना है तो आई विल बी ओपन टू ऑल. सो दिस इज माय ईमेल. So अगर फर्दर इफ एनीवन वांटेड टू डू वर्क ऑन दिस एरिया